So today's ICATS class topic is going to be area of a polygon. Okay, so today we're going to look at what are polygons and what are the areas of the polygon. ठीक है? So let's start with the class. I hope कि सबको मेरी आवाज clear आ रही है. Can you all hear me properly? Okay, so this is something about polygons. पहले हम बात करते हैं कि polygons क्या है. Polygons are those shapes which are closed. वो shapes जो closed होती हैं. The shapes which are closed are known as polygons. For example, triangle is a closed shape. Triangle is a closed shape. शर्त ही है कि shape का close होना जरूरी है. For example, the circle is a closed shape. For example, rectangle is a closed shape. Fine. In this way, kite is also a closed shape. So any shape which is closed is said to be a polygon. मिसाल के तौर पे if we have a shape like for example this shape is not closed, ये shape closed नहीं है, so this is not a polygon. For example, if we have a shape like this, so again this shape is not closed, so this is not a polygon. So polygon is any shape which is closed, first of all. Now, second thing, we have types of polygons. Polygons depend on the number of sides. Polygons depend करती हैं number of sides पर कि कितनी sides है. Number of sides. So the polygon, you will have to make the table in the copy as well. You will make notes on it. Polygon with actually three sides is actually a triangle. यानी वो polygon जिसकी three sides हो उसे हम triangle कहते हैं. We call it a triangle. I'm writing it again. Polygon with three sides is known as triangle. We can make a triangle here. Polygon with three sides. Polygon with four sides. Polygon with four sides is said to be a quadrilateral. 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 अब इस क्वाड्रिलैटरल में फोर साइड वाली शेप बेतहाशा है. इसमें हमारे पास स्क्वायर भी है, जैसे मुजम्मिल ने स्क्रीन पे लिखा, रेक्टेंगल भी है, वी हैव पैरेललोग्राम, वी हैव ट्रेपीजियम. देयर आर मेनी शेप्स, देयर आर मेनी quadrilaterals actually. ठीक है? So quadrilateral is any shape with four sides. Then after quadrilateral we have five sides. So quadrilateral with five sides is said to be a pentagon. Five sides के लिए pentagon. Polygon with six sides is said to be a hexagon. मैं भी आपको ड्रॉ करके भी दिखाऊंगी. Polygon with seven sides is said to be a heptagon.
heptagon, polygon with 8 sides is said to be an octagon. Polygon with 9 sides is said to be a, I'm writing it up right here, nanogon. Grade 7 has already done it. 9 sides is nanogon. And polygons with 10 sides is said to be a decagon. So ये हमारे पास पॉलीगन्स की टाइप्स हैं और जितनी साइड्स बढ़ती जाएंगी उस हिसाब से इनके नाम है। अच्छा, यहाँ पे मुझे कैसे पता कि 3 के लिए ट्रायंगल है, 4 के लिए क्वाड्रिलेटरल है? एक्चुअली इनके वर्ड्स के अंदर इसका मीनिंग छुपा हुआ है। ट्राई मीन्स 3, quad means 4, pent means 5, hex means 6, hept means 7, oct means 8. It means 8. Fine. Then nano or nana means 9, deca means 10. तो ये जो वर्ड्स है इन्हीं के अंदर मीनिंग है। अच्छा, ये जो वर्ड्स हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो वर्ड्स है लाइक ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नैन, डेका, तो ये सिर्फ आप मैथ्स में यूज नहीं कर रहे, यू गोना यूज इट इन योर केमिस्ट्री, इन योर फिजिक्स, इन योर बायो, मेनी मेनी प्लेसेस। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी बेसिक। तो ये हमारे पास बेसिकली पॉलीगन्स के कुछ नाम है। आज का हमारा टॉपिक इज एक्चुअली द एरिया। वी हैव डिस्कस कि एरिया क्या होता है। एरिया इज हाउ मच स्पेस एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग। लास्ट क्लास में मैंने आपको एरिया बताया था, एरिया ऑफ अ 2D शेप। एरिया इज ऑफ 2 टाइप्स, यू नो। एरिया हम कैलकुलेट करते हैं 2D शेप्स के लिए, एरिया हम लोग कैलकुलेट करते हैं 2D शेप्स के लिए, और हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। वी कैलकुलेट वॉल्यूम फॉर दी 3D शेप्स। ठीक है, 2D शेप्स हमारे पास सर्कल, ओवल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, रोम्बस, तमाम की तमाम शेप्स आती हैं जिनकी 2 डायमेंशंस, 2D मतलब 2 डायमेंशंस, यानी एक x और एक y, 2 डायमेंशंस हो। लेकिन 3D शेप्स में बस क्या आते हैं हमारे पास? कोन, पिरामिड, स्फीयर, प्रिज्म, क्यूबॉइड, क्यूब, स्फीयर, हेमिस्फीयर। तो ये तमाम हमारे पास जो है बेसिकली 3D शेप्स है, क्योंकि इनमें क्या है, हमारे पास 3 डायमेंशंस है। एक हमारे पास x, y और एक हमारे पास z है। ठीक है, हमने ये लास्ट क्लास में सारी बातें पढ़ी थी। दिस इज नथिंग सो मच न्यू, इट्स ऑल द सेम, but today we are going to discuss about area of polygons. Area and volume both have the same meaning. The space they cover, कितनी जगह वो लोग घेरते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी जगह घेरे उसे हम एरिया कहते हैं, या उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। लेकिन फर्क ये है कि एरिया इज फॉर द 2D शेप्स एंड 3D इज वॉल्यूम इज फॉर द 3D शेप। सो लेट्स कम टूवर्ड्स एरिया फॉर पॉलीगन। अच्छा, अब हमारे पास जब हम स्टार्टिंग करते हैं पॉलीगन से, वी हैव ट्रायंगल्स, स्टार्टिंग क्योंकि ट्रायंगल्स, क्वाड, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, फिर हमारे पास रोम्बस आता है बीच में, काइट। तो ये हमारे पास तमाम की तमाम वो शेप्स हैं जिनकी 4 साइड्स हैं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? वी हैव, फिर हमारे पास पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, नैनोगन, सो एंड सो ऑन आते हैं। तो हमारे पास ना कुछ पॉलीगन्स का एरिया निकालना में बहुत ही आसान लगता है, यानी कुछ के फॉर्मूलाज हमारे पास है। लेकिन अगर हम बात करें पेंटागन की, पेंटागन यानी 5 साइड्स, तो इसका हम एरिया नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन इसका एरिया हम निकाल सकते हैं
बट इसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला है जो आपके लेवल का नहीं है, तो हम डिस्कस करेंगे कि जब जैसे शेप्स है लाइक पेंटागन, हेक्सागन, फिर हमारे पास जैसे सपोज हेक्सागन के बाद हेप्टागन है, तो हम इस तरह की शेप्स का एरिया कैसे निकाल सकते हैं, हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम ट्राइंगल का एरिया पढ़ चुके हैं, स्क्वायर का पढ़ चुके हैं, रेक्टेंगल का पढ़ चुके हैं, वी हैव डन अबाउट पैरेललोग्राम्स, अबाउट ट्रेपीजियम्स, अबाउट पैरेललोग्राम्स, अबाउट kite. लेकिन the problem is how to calculate the area of a shape which is having more sides. ठीक है? Okay, what we said, eight side shape, we call it octagon. Okay, fine. So I'm going to share you guys a screen. I hope you can see it. Now we have two types of polygons. Polygons हमारे पास two types के होते हैं. First is the regular polygon, यानी वो polygon जो कि proper है, जिससे एक proper shape बन रही है, like rectangles, squares, trapeziums, parallelogram, इनका एक प्रॉपर शेप है, ठीक है, इनकी प्रॉपर शेप्स है, तो हम इनको बोलते हैं कि ये एक रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है. एंड वन मोर थिंग इज दैट हैव प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग द एरियाज, और इनके एरियाज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक फॉर्मूला भी है. However, for an irregular polygon, the area is calculated by dividing an irregular polygon into a small section of regular polygons. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं हमें कि रेगुलर पॉलीगन्स वो होते हैं जो कि सिंपल है, जिनकी प्रॉपर शेप है, ठीक है, लेकिन व्हाट आर इरेगुलर पॉलीगन्स? इरेगुलर वो पॉलीगन्स होते हैं जिनकी प्रॉपर कोई शेप नहीं होती है, और उनका हम एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको मजीद डिवाइड करते हैं, मजीद टुकड़ों में डिवाइड करते हैं. मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये शेप दूं पेंटागन, तो मैं इसका एरिया कैसे निकालूंगी? पहले तो मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर. पहले मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगी, फिर मैं स्क्वायर का एरिया निकालूंगी, तो इस तरीके से मेरे पास पूरे पेंटागन का एरिया आ जाएगा. मतलब हम लोग डिवाइड करके एक शेप को मुख्तलिफ पीसेस में वी विल कैलकुलेट द एरिया. Now, area for regular polygon, calculating the area for regular polygon can be simple as finding the area of a regular triangle. Regular polygons have equal side lengths and equal measure of angles. अच्छा, अब क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं हमें कि रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, दो बातें. एक कि साइड्स इक्वल होती है, their angles will also be somewhat equal. ठीक है, so ये कुछ बातें थी about a polygon. So let's move into the first kind. Okay, so if you see here, these are some examples of polygons we are having. First polygon is a triangle. Triangle is a polygon with three sides. So let's underline that three sides here. So this is the first side. Side number 1, side number 2, side number 3. That's why it's called a triangle. Okay. So triangle का हमें जब area calculate करना है, we know that it's half base multiplied by height, where b is the base and h is the height. अब height मतलब ये top, ये height, इसकी बात की जाती है. ये हमारे पास triangle के बारे में डाटा मौजूद है हमारे पास. If we talk about rectangle, what is the area for rectangle? Area for rectangle is basically length multiplied by breadth. Okay, so length or width, maybe you can say, let's do it another way. breadth को width भी कहा जाता है. ट्राइंगल का मैंने बताया कि लंबी साइड को हम लोग लेंथ बोलते हैं, एंड द शॉर्टेस्ट साइड इज नोन एज द ब्रेथ. whenever we need to find the area for rectangle, we multiply length with the breadth. You will just ignore w and h over here, where l is the length and b is the breadth. Now coming towards the next shape, we have a trapezium. So now in trapezium there are two types of trapezium actually, because trapezium जो है US में we call it trapezoid, and in UK we call it trapezium. I'll just tell you in a while why we call it trapezoid in US and why trapezium in UK. But general formula, जब भी हमें किसी भी trapezium का एरिया निकालना होता है, हम लोग क्या करते हैं, we write half ब्रैकेट ओपन करते हैं, शॉर्टेस्ट वाली साइड यानी ए को प्लस करते हैं नीचे वाली साइड यानी बी के साथ, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं विद द हाइट. So if I read it again, it's like this: half small side a plus b multiplied by height.
ये हमारे पास एक्चुअली फॉर्मूला है किसी भी ट्रेपीजियम के लिए. अगेन इफ आई शो यू हियर, this A, small side A, is the shortest side and B is the longest side, and the one in green color is the height. The height is actually कि लंबाई, इस शेप की लंबाई कितनी है. This is the height actually. Fine. So this is the formula for a trapezium or a trapezoid. Okay. A is the smallest side and B is the biggest side. ठीक है, अभी हम जनरली बात कर रहे हैं, फिर मैं आपको थोड़ा डीपली बताऊंगी हर शेप के बारे में. इन स्क्वायर वी नो कि एक साइड अगर S है तो ये वाली साइड भी S होगी, ये वाली साइड भी S होगी, ये वाली साइड भी S होगी, यानी तमाम की तमाम साइड्स के हमारे पास स्क्वायर में ऑल द साइड्स आर equal. If one side is 2 centimeter, the other will also be 2, the third one will also be 2 and the fourth one will also be 2 centimeters. Sides सारी क्या होंगी स्क्वायर के अंदर बराबर है. So what we do is, formula for the area of a square is side multiplied by side. क्योंकि मैंने साइड के लिए S यूज किया है, अगर आप साइड के लिए A यूज करेंगे तो तब भी आपके पास A मल्टीप्लाइड बाई A हो जाएगा. जब भी हम किसी भी लेटर को दो दफा मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट S स्क्वायर, A स्क्वायर. समझ में आया सबको? एनी प्रॉब्लम क्लास? Is it clear class? Any problem? समझ में आ रहा है अफनान, बनीन, इरसन, हसनैन? Is it clear to you? If you guys cannot open your mic, you can text me from the chat box, okay? Okay, now next shape is parallelogram. Parallelogram is also a quadrilateral. जब भी जितनी शेप्स में देखिए, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरालेलोग्राम है, ये सब. Yes dear, who was it? Okay, so these are all actually basically they are quadrilateral, यानी वो शेप जिनकी 4 sides हैं, उनमें से एक पैरालेलोग्राम भी है. Parallelogram is just like a rectangle. लेकिन क्या होता है, if I look at this carefully, if I draw it on the screen, basically क्या होता है? Parallelogram is actually made from a triangle. ये एक्चुअली एक पैरेललोग्राम का डायसेक्शन है. क्या होता है, एक ट्रायंगल को बेसिकली वो कट कर देते हैं. एक ट्रायंगल को अगर वो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे लगा देते हैं एंड दूसरा ट्रायंगल फ्लिप करके दूसरी साइड पे. So basically a parallelogram is made up from a rectangle and a triangle. ये बेसिकली एक पैरालेलोग्राम की कह ले हिस्ट्री है कि पैरालेलोग्राम बना कैसे. ठीक है, या अगर हम कोई पैरालेलोग्राम लें, मिसाल के तौर पर देखा पैरालेलोग्राम, और अगर मैं इसकी साइड्स को कट कर दूं और अगर मैं इनकी साइड्स को ज्वाइन करूं तो मेरे पास क्या बनेगा? हमारे पास एक ट्रायंगल, ये एक साइड का ट्रायंगल है, दूसरा ऐसे लगा हुआ था. अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं, इफ आई फ्लिप इट अप लाइक दिस, ये एक कॉर्नर पे था, अगर मैं इसको फ्लिप करूं देन आई गेट अ ट्रायंगल. मतलब एक पैरेललोग्राम इज मेड अप फ्रॉम अ रेक्टेंगल एंड अ ट्रायंगल. सो हाउ टू कैलकुलेट द एरिया? That was the first theory. Again, the second theory about parallelogram is, now this is going to tell us कि formula कैसे आएगा. I have drawn a parallelogram here. अब मैं दोनों sides को cut नहीं कर रही हूँ. I am cutting only one side here. मैंने ये part cut कर दिया red वाला. जब मैंने ये वाला part cut कर दिया, I am left over with this. ठीक है, अगर आप गौर करें ना, this is a trapezium shape. अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने जो रेड वाला पार्ट कट किया है मैं इसको बिल्कुल इसके आगे यानी इस वाले पार्ट पे फिट कर रही हूँ. सो यू कैन सी, जब मैंने ये वाला पार्ट फिट किया इसके आगे
अब मुझे बताएं ये कौन सी शेप बन रही है, विच शेप इज दिस, हु कैन टेल मी व्हाट शेप इज दिस। एक पैराग्राम था, पहले मैं दोनों साइड्स कट कर रही थी, फिर उनको मैं ज्वाइन कर रही थी, लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक पैराग्राम की सिर्फ वन साइड कट की, आई हैव कट ओनली दिस साइड। जब मैंने ये वाली साइड कट की, इस साइड को मैंने यहाँ पे स्टिक कर दी है, कट करने के बाद यहाँ पे स्टिक कर दी है। तो अब बताइए फुल मेरे पास क्या शेप बन रही है, व्हाट शेप इज दिस, व्हाट शेप इज दिस, हु कैन टेल मी। आई वांट Irsam to answer. Irsam, are you there? Irsam, are you there? It's not trapezoid. Actually, it looks like a trapezoid, but it is not trapezoid. It is actually a rectangle shape. हमारे पास एक rectangle shape बन जाती है, ठीक है। हम actually टेलेंगे कि formula आया कैसे, ठीक है। What is the area for rectangle? Area of a rectangle is length multiplied by the breadth. अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इसको लेंथ की जगह पे उन्होंने क्या कर दिया है, I'm erasing this off now. Now what they're doing is, in place of length, what they write is, they write breadth. Please don't write on the screen. And in place of breadth, the B, what they're writing is, they're writing H multiplied by H. What is B? B is the base. This is the base. Base यानी वो part जिस पे पूरी shape stand करती है. And H is the height. This is the height. ठीक है, बेसिकली लेंथ एंड ब्रेथ है रेक्टेंगल की लैंग्वेज में, लेकिन बेस एंड हाइट है इन द लैंग्वेज ऑफ अ पैरेललोग्राम. Is it clear to all of you? Any problem, class? So after parallelogram, we having a circle shape. What is the area of a circle? Area of a circle is pi r square, where r is the radius and pi is the constant. ठीक है? This is how we actually calculate the area of a shape. Now I'm giving you guys some homework. What you guys need to do is, you need to copy down all the formulas given to you in the picture, from starting from rectangle, square and till the circle. दूसरा आप लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें आपको मैंने जितने पॉलीगन्स के नाम बताए हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रायंगल, ट्रायंगल टिल डेकागन, दैट इज 10 sides, ठीक है। And then third, we're going to write down about irregular and regular polygons. How do we what are regular polygons, और इनका एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा कि हम रेगुलर पॉलीगन्स का एरिया फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला. एंड हाउ डू वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ एन इरेगुलर पॉलीगन, बाय डिवाइडिंग द शेप, क्योंकि इरेगुलर पॉलीगन्स की साइड और उनके एंगल्स इतने सेम नहीं होते, ठीक है। सो व्हाट यू गोना डू इज, यू गोना मेक नोट्स and then I'm giving you guys a homework which you will be finding the area. Find the area, find area. Formulas आपके पास है. First you're going to calculate the area of this rectangle. 6 centimeters जो है इसकी length है और 8 centimeter इसकी breadth है. First question. Second, आप इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करेंगे, in which the smallest side is 2, biggest side is 5 and the height is 5 centimeters. आप एरिया कैलकुलेट करेंगे. एंड पार्ट नंबर 3, आप एक सर्कल का एरिया निकालेंगे. सर्कल with radius 6 centimeters. Alright class, these are the 3 questions which you have to do as homework. That's it with the class. I hope everybody understood everything. Take care. Allah Hafiz.